હરિઓમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે હિન્દીમાં પાઠ 7 પૂર્ણ થઈ ગયા છે। હવે હું આજે 8મો પાઠ ચલાવીશ, જે છે 8મો पाठ છે हंसना मना है। उसका पेज नंबर है 46 यानी कि 46वां पेज। उस पे चुटकुले दिए गए हैं। तो चुटकुले हास्य एवं व्यंग विनोद का एक सशक्त माध्यम है। चुटकुले का प्रमुख गुण यह होता है कि उनका स्वरूप छोटा और संवाद छोटे छोटे होते हैं। चुटकुले पढ़ने और सुनने से हमारा तनाव दूर होता है। इस दृष्टि से चुटकुले तनाव दूर करने का सशक्त माध्यम है। तो यहाँ पे पहला चुटकुला दिया है। चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा क्या आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? यानी कि અહીંયા એક ઉંદર છે તે હાથીને એવું કહે છે કે હાથી દાદા તમારી જે લુંગી છે તે 2 દિવસ માટે મને આપશો? હાથી तुम उसका क्या करोगे? એટલે કે હાથી એ ઉંદરને પૂછે છે તું એને શું કરીશ? चूहा मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। એટલે કે મારા છોકરાના લગ્ન છે તેમાં તંબુ બાંધવો છે। उसके बाद है दूसरा, पता नहीं लोग महीनों बाद नहाए कैसे रहते हैं। એટલે કે ખબર નહીં લોકો મહિનાઓ સુધી નાયા વગર કેવી રીતે રહેતા હશે। मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। એટલે કે મને તો 28મા દિવસે જ खुजली એટલે કે ખંજવાળ આવવા લાગે છે। उसके बाद तीसरा चुटकुला है, ग्राहक आपके पास टूथब्रश है। એટલે કે જે ગ્રાહક છે એ દુકાનદારને એવું કહે છે કે તમારી પાસે ટૂથબ્રશ છે? દુકાનદાર બ્રશ નહીં है पेस्ट है। એટલે દુકાનદાર સામે જવાબ આપે છે કે બ્રશ તો નથી પણ પેસ્ટ છે। ગ્રાહક अच्छा आपके पास पाउडर होगा। એટલે જે ગ્રાહક છે એ એવું કહે છે કે ખેર आपके पास पाउडर तो હશે ને, એટલે કે તમારી જોડે પાવડર તો છે ને। દુકાનદાર પાવડર નહીં है क्रीम है। એટલે દુકાનદાર એવું કહે છે કે પાવડર તો નથી પણ ક્રીમ છે। ગ્રાહક ક્રીમ નહીં चाहिए टॉर्च मिलेगी। એટલે ગ્રાહક એવું કહે છે કે ક્રીમ નથી જોઈતી પણ ટોર્ચ મળશે। દુકાનદાર वह तो कल ही खत्म हो गई। એટલે જે દુકાનદાર છે એ એવું કહે છે જે કાલે જ પતી ગઈ પણ મોમબત્તી છે એટલે કે મોમબત્તી મીણબત્તી છે। ગ્રાહક ખેર તાલા તો હોના ही चाहिए। એટલે ગ્રાહક જે છે એ દુકાનદારને એવું કહે છે કંઈ વાંધો નહીં પણ તાળું તો હશે ને તમારી જોડે। દુકાનદાર હે દો એટલે કે છે આપો। ग्राहक जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप घर पे आराम कीजिए। એટલે જે આ ગ્રાહક છે એ દુકાનદારને એવું કહે છે કે મારે તાળું નથી જોઈતું પણ તમે દુકાન ઉપર તાળું લગાવી અને ઘરે આરામ કરો। उसके बाद है चौथा चुटकुला, चुन्नू जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है। એટલે કે જ્યાં વરસાદ વધારે પડે છે ત્યાં શું મળે છે? છાતા એટલે કે છત્રી। 5वां चुटकुला, 3 दोस्त आपस में गपशप कर रहे हैं। એટલે કે 3 મિત્ર છે એકબીજા ટોળા ટપ્પા કરી રહ્યા છે। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए हैं तो हम क्या करेंगे। એટલે કે 3 મિત્રો છે તે 3 મિત્રો ભેગા થઈને ગપ્પા મારી રહ્યા છે। તેમને એક દિવસ પ્રશ્ન થયો કે ઊંઘી અને ઉઠીને ખબર પડે છે કે રાત્રે ઊંઘમાં એવું સપનું આવે છે કે આપણે કરોડપતિ થઈ ગયા છે તો હવે શું કરીશું। एक ने कहा हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मजे करेंगे। એટલે જે એક મિત્ર હતો તે એવું કહે છે હું તો સીધો પેરિસ જઈશ અને ત્યાં ખૂબ મજા કરીશ। उसके बाद दूसरे जो मित्र है उसने कहा कि मैं किसी लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाऊंगा। એટલે કે જે બીજો મિત્ર છે તે એવું કહે છે કે હું ક્યાંક જ્યાં લાભ થાય
થાય તેવી જગ્યા, તેવા કારોબાર એટલે કે તેવી જગ્યાએ હું તેવા બિઝનેસમાં પૈસાનું રોકાણ કરીશ। तीसरा बोला, मैं तो फिर सोने की कोशिश करूँगा और तब तक सोता रहूँगा जब तक करोड़पति न बन जाओ। એટલે કે જે ત્રીજો મિત્ર છે એ એવું કહે છે કે હું ફરીથી ઊંઘવાની કોશિશ કરીશ અને ત્યાં સુધી ઊંઘતો રહીશ કે જ્યાં સુધી હું કરોડપતિ ન બની જાઉં। भूत, वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो? એટલે કે જે ભૂત છે, ભૂતકાળ, વર્તમાન અને ભવિષ્યથી તમે શું સમજો છો? जी मेरे दादी जी भूत, मेरे पिताजी वर्तमान और मैं उनका भविष्य हूँ। यानी कि એ કહે છે કે મારા જે દાદાજી છે તે ભૂત છે, મારા પિતાજી વર્તમાન છે અને હું તેનું ભવિષ્ય છું। उसके बाद आगे 7वां चुटकुला है प्रश्न, रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। यहाँ पे प्रश्न किया है कि रेल किराया इतना बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। એટલે કે રેલનું ભાડું એટલું બધું વધી ગયું છે કે યાત્રીઓની સંખ્યામાં વૃદ્ધિ એટલે વધારો થઈ રહ્યો છે, એનું કારણ શું હશે? जवाब છે उत्तर यानी कि जवाब, इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसीलिए अभी यात्रा कर ली जाए। એટલે કે જવાબમાં એવું છે કે કારણ આ છે કે દરેક વ્યક્તિ, દરેક આદમી એવું વિચારે છે કે નેક્સ્ટ ટાઈમ એટલે કે ફરીથી જે વરસ આવશે તેમાં આના કરતાં પણ હજી વધારે ભાડું વધી જશે, એના કરતાં તો અત્યારે જ યાત્રા કરી લેવી સારી। शिक्षक ने सभी छात्राओं को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। એટલે કે જે શિક્ષક છે સભી છાત્રા એટલે કે બધા વિદ્યાર્થીઓને ઘાસ ખાતી ગાયનું ચિત્ર બનાવવાનું કહે છે। સભી છાત્ર ચિત્ર બના રહે हैं એટલે કે બધા જ વિદ્યાર્થીઓ ઘાસ ખાતી ગાયનું ચિત્ર બનાવી રહ્યા છે। કલ્પેશ ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया એટલે કે જે એક કલ્પેશ નામનું વિદ્યાર્થી છે તેને પોતાનું પેજ કોરું છોડી દીધું। शिक्षक, कल्पेश इस चित्र में घास कहाँ है? એટલે શિક્ષક એ વિદ્યાર્થીને પૂછે છે કે કલ્પેશ આ ચિત્રમાં ઘાસ ક્યાં બતાવ્યું છે? તો કલ્પેશ કહે છે કે ઘાસ को तो गाय खा गई એટલે કે ઘાસને તો ગાય ખાઈ ગઈ। शिक्षक, अच्छा तो गाय कहाँ है? એટલે કે શિક્ષક કહે છે કે સારું તો ગાય ક્યાં છે? કલ્પેશ કહે वह तो घास खाकर चली गई એટલે કે કલ્પેશ એવું કહે છે કે તે ગાય ઘાસ ખાઈને જતી રહી। उसके बाद है 9वां चुटकुला, चुन्नू, मम्मी से ज़्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। यहाँ पे चुन्नू है वो कह रहा है कि मम्मी से ज़्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है, तो क्योंकि पापा प्रति चाटा 5 रुपये देते हैं। એટલે કે જે આ ચુન્નુ છે તે એવું કહે છે કે પપ્પા મને મમ્મી સે જ્યાદા પાપા કા ચાટા પસંદ એટલે કે જે મમ્મી મારે તેના કરતાં પપ્પા જે ચાટો મારે તે મને વધારે પસંદ છે। કેમ કે પપ્પા જેટલા લાફા મારે એટલા પૈસા મળે, એટલા રૂપિયા મળે। એટલે કે ચાટા 5 રૂપિયા દેતે એટલે કે એક લાફા ઉપર 5 રૂપિયા આપે એટલે જેટલા મારે એટલો એને ફાયદો છે, એટલે તેને મમ્મી કરતાં પપ્પાનો ચાટો વધારે પસંદ છે। उसके बाद ये अपना पूर्ण हो गए। यहाँ पे हंसना मना है, यहाँ पे चुटकुले दिए थे वो अपने पूर्ण हो गए हैं। उसके बाद देखते हैं अभ्यास में दिया है प्रश्न 1, हर एक छात्र को कक्षा में मनपसंद चुटकुला सुनाने का मौका दिया जाए। उसके बाद प्रश्न 2 है कि कोई ऐसा प्रसंग सुनाइए जब आप खूब हंसे हो। उसके बाद तीसरा है 5 चुटकुले बनाकर सुनाइए। तो ये सब आपको घर पे करना है। उसके बाद है स्वाध्याय,
मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। उसमें एक साहब टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से बोले, એટલે એક સાહેબ છે એ ટેક્સીમાં બેસી અને ડ્રાઈવરને કહે છે કે જરા તેજ ચલો વરના મેરા ચિત્રહાર નિકલ જાયેગા। એટલે કે એક ડ્રાઈવર છે, એક સાહેબ છે એ ટેક્સીમાં બેઠા છે, તેમના ડ્રાઈવરને એવું કહે છે કે ડ્રાઈવર ગાડી તેજ એટલે કે જલ્દી ભગાડ, વરના મેરા ચિત્રહાર નિકલ જાયેગા એટલે કે મારો ચિત્રહાર જતું રહેશે। ड्राइवर बोला, अगर मैं ज़्यादा तेज चला तो कहीं ऐसा न हो कि आपके और मेरे चित्रों पर हार चढ़ जाए। એટલે કે આ ડ્રાઈવર છે એ સાહેબને એવું કહે છે કે અગર હું વધારે તેજ ચલાવવામાં ગાડી એવું ના થાય કે આપણે બંને ઉપર પહોંચી જઈએ અને આપણા બંનેના ફોટા ઉપર ચિત્ર એટલે કે ફોટા ઉપર હાર ચડી જશે। हार न चढ़ जाए એટલે કે हार न चढ़ी जाए। उसके बाद है दूसरा, શિક્ષક મોહન છે, મોહન તાજમહેલ કહાં પર હે એટલે કે શિક્ષક છે એક મોહન નામનો વિદ્યાર્થી છે, તેને એવું કહે છે કે મોહન તાજમહેલ ક્યાં છે। મોહનને કુછ ઉત્તર નહીં દિયા એટલે કે જે મોહન છે તેને કંઈ જવાબ આપ્યો નહીં। શિક્ષકને ઉસે બેન્ચ પર ખડા કર દિયા એટલે કે શિક્ષકે તેને બેન્ચ ઉપર ઊભો કરી દીધો। મોહન બેન્ચ પર ખડા હોकर સાहब यहाँ पर से भी नहीं दिखाई देता એટલે કે મોહન છે તે એવું જવાબ આપે છે કે એ શિક્ષકને કે બેન્ચ સાહેબ કે બેન્ચ ઉપર ઊભા રહીને હજી પણ મને તાજમહેલ નથી દેખાતો। उसके बाद है प्रश्न 2, राष्ट्रभाषा में अनुवाद कीजिए એટલે કે અહીંયા આપ્યું છે ગુજરાતીમાં, એનું આપણે ટ્રાન્સલેશન હિન્દીમાં કરવાનું છે। અહીંયા છે રમેશ આવી જિંદગી કરતા તો મોત સારું, એનું હિન્દી કરવાનું છે રમેશ ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। रमेश आवी जिंदगी करता तो मौत सारू, उसका हिंदी होगा ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। अचानक यमदूत आवी गया અને બોલ્યા કે અચાનક यमदूत आ गया और बोला, તારો જીવ લેવા માટે મને આદેશ મળેલ છે। यानी कि बोला तुम्हारे प्राण लेने के लिए मुझे आदेश मिला है। पूरा वाक्य है, अचानक यमदूत आ गया और बोला तुम्हारे प्राण लेने के लिए मुझे आदेश मिला है। उसके बाद आगे हैं, रमेश लो बोलो, હવે તો માણસ મજાક પણ નહીં કરી શકે શું। रमेश कहिए, अब तो आदमी मजाक भी नहीं कर सकेगा क्या। क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे, क्वेश्चन दिया है। रमेश लो बोलो, હવે તો માણસ મજાક પણ નહીં કરી શકે શું। रमेश कहिए, अब तो आदमी मजाक भी नहीं कर सकता क्यों। उसके बाद दूसरा है, ब्रिजेश भाई बस में ઊભા રહીને मुसाफरी કરી રહ્યા હતા। ब्रिजेश भाई बस में खड़े होकर मुसाफरी कर रहे थे। ब्रिजेश भाई बस में ઊભા રહીને मुसाफरी કરી રહ્યા હતા, यानी कि ब्रिजेश भाई बस में खड़े होकर मुसाफरी कर रहे थे। उसके आगे एक मुसाफरे तमने बेसवा माटे जग्या करी आपी। एक मुसाफरे तमने बेसवा माटे जग्या करी आपी। उसका हिंदी होता है, एक मुसाफिर ने उनके बैठने के लिए जगह कर दी। पूरा वाक्य है, ब्रिजेश भाई बस में खड़े होकर मुसाफरी कर रहे थे। एक मुसाफिर ने उनके बैठने के लिए जगह कर दी। उसके आगे हैं, ब्रिजेश भाई मारे બેસવું નથી, મારે ખૂબ ઉતાવળ છે। એટલે કે ब्रिजेश भाई मुझे बैठना नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। ब्रिजेश भाई मुझे बैठना नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। अपने पाठ हंसना मना है, उसमें अभ्यास स्वाध्याय के जो अनुवाद हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। इसके अलावा अपने इस पाठ में से अगर वर्कशीट में या एग्ज़ाम में कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न
पूछे जाए तो आप लिखोगे। जैसे कि प्रश्न पूछे जाए कि ग्राहक ने ताले के बारे में, ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को क्या सलाह दी? ग्राहक ने ताले के बारे में क्या सलाह दी? ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को क्या सलाह दी? तो ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार ने वह सलाह दी कि वह दुकान पर ताला लगाकर फिर से घर जाकर आराम करे। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा जाए कि लखपति बनने पर तीसरा दोस्त कब तक सोता रहेगा? लखपति बनने के लिए तीसरा दोस्त कब तक सोता रहेगा? तो लखपति बनने पर तीसरा दोस्त तब तक सोता रहेगा जब तक वह करोड़पति बन न जाए। तब तक सोता रहेगा जब तक वह करोड़पति न बन जाए। रेल किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है? रेल किराया बढ़ जाने पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है? तो रेल किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि लोगों को अगले साल किराया और बढ़ जाने की आशंका है, इसीलिए लोगों में वृद्धि हो रही है। उसके बाद आगे कोई एक्स्ट्रा प्रश्न है, जैसे कि कल्पेश ने कागज पर गाय और घास के चित्र न होने का क्या कारण बताया? कल्पेश ने कागज पर गाय और घास के चित्र न होने पर क्या कारण बताया? तो कल्पेश ने कागज पर गाय और घास के चित्र न होने का यह कारण बताया कि गाय घास खाकर चली गई। यह कारण कल्पेश ने बताया कि गाय घास खाकर चली गई। लड़के ने भूत, वर्तमान और भविष्य के कौन कौन से उदाहरण दिए हैं? लड़के ने भूत, भविष्य और वर्तमान के कौन कौन से उदाहरण दिए हैं? तो लड़के ने कहा है कि उसके दादाजी भूत थे, उसके पिताजी वर्तमान थे और वह स्वयं उनका भविष्य था। उसके आगे कुछ ऐसे जो विकल्प पूछे जाए, जैसे कि चूहा हाथी की लुंगी से क्या लाएगा? चूहा हाथी की लुंगी से क्या लगाएगा? चूहा हाथी की लुंगी से क्या लगाएगा? तो ऑप्शन पूछे जाएंगे चादर, धोती, कमीज या तंबू। तो इनमें से क्या आएगा? तंबू। कागज, धोती, चादर, धोती, कमीज या तंबू। तो इनमें से क्या आएगा? तंबू। दूसरा विकल्प है मुझे तो 28वें दिन ही खाली जगह होने लगी। ऑप्शन है खांसी, खुजली, उल्टी या शंका। तो क्या आंसर आएगा? खुजली। मुझे तो 28 दिन ही खुजली होने लगी। उसके बाद है तीसरा विकल्प, जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ क्या क्या होता है? जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ क्या क्या होता है? तो जहाँ बारिश होती है वहाँ साहब, गेट, छाता या लाभ। तो क्या आएगा? छाता। पापा बेटे को प्रति चाटा कितने रुपये देते हैं? पापा बेटे को प्रति चाटा कितने रुपये देते हैं? ऑप्शन में पूछा है 2, 3, 4, 5। तो क्या आंसर आएगा? 5। पापा प्रति चाटे को 5 रुपये देते हैं। उसके आगे हैं जैसे कि 5 चुटकुले बनाकर सुनाइए। जैसे कि बच्चों बताओ कि दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों बताओ दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसे पी लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? पी लेना चाहिए। दूसरा, सोनू पेड़ पर चढ़ा, बंदर ने पूछा ऊपर क्यों आया? सोनू पेड़ पर चढ़ा, बंदर ने पूछा ऊपर क्यों आया? सोनू ने कहा केले खाने। बंदर ने कहा यह तो आम का पेड़ है।
बाद है पालतू बिल्ली मर गई। पालतू बिल्ली मर गई। श्यामू बहुत रो रहा था। पालतू बिल्ली मर गई। श्यामू बहुत रो रहा था। सेठानी ने पूछा, सेठानी ने पूछा, तू इतना क्यों रो रहा है? सेठानी ने पूछा कि तू इतना क्यों रो रहा है? तब नौकर ने बोला, अब मैं दूध पीकर दोस्त किसी के सिर मढ़ूंगा। अब मैं दूध पीकर दोस्त किसके सर मढ़ूंगा। रामदास ने पहलवान से पूछा, आपकी आयु कितनी है? तो पहलवान ने कहा 30 साल। रामलाल ने पहलवान से पूछा कि आपकी आयु कितनी है? तो पहलवान ने क्या कहा? 30 साल। रामदास, तुमने 5 साल पहले भी यही उम्र बताई थी। पहलवान, हम अपने वचन पर अटल रहते हैं। रामलाल ने क्या कहा? हम अपने वचन पर अटल रहते हैं। सेठानी ने नौकर से कहा, बगीचे में पेड़ पौधे का पानी डाल। सेठानी ने नौकर से कहा, बगीचे में पेड़ पौधे को पानी डाल। तो नौकर ने कहा, अब तो बारिश हो रही है। नौकर ने क्या कहा? अब तो बारिश हो रही है। सेठ जी, हाँ तो छाता लेकर पानी डाल। सेठ जी ने क्या कहा? हाँ तो बारिश। उसने सेठानी ने पहले नौकर से कहा कि जा जो पौधे हैं उसको पानी डाल। तो नौकर ने कहा, अब तो बारिश हो रही है। तो जो सेठ है उसने आंसर दिया कि छाता लेके जा और पानी डाल। जैसे कि यहाँ पे अपने योग्यता विस्तार दिया हुआ था। दूरदर्शन चैनल पर प्रसारित होने वाले हास्य कार्यक्रम आप जैसे देखते हो, उसमें ऐसे चुटकुले जैसे गम्मत, गुलाब, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे गम्मत वाले तारक मेहता का उल्टा चश्मा आदि आप सब लोग देखते होंगे। उसमें आपको देखने का मजा आता होगा। रेडियो पर प्रसारित चुटकुले, हास्य प्रसंग, मज़ेदार कहानियाँ अखबार पत्रिका में आदि में, कार्टून चित्र में वगैरह में ऐसे हास्य पद आपको देखने मिलेंगे और आप एक्स्ट्रा उसमें से लिख सकते हो। जैसे कि रमेश, मैं एक ऐसा घर बनाऊंगा जिसकी छत पर खड़े होकर तारों को छुआ जा सके। सुरेश ने, मैं एक ऐसा बांस लगाऊंगा जो बादल तक पहुंचता हो। रमेश, तुम अब बिस्की रखोगे कहाँ? बांस को रखोगे कहाँ? तो ऐसे यहाँ पे चुटकुले दिए हैं कि कक्षा में आप लोग भी आपको आते होंगे 5-5 चुटकुले अपने नोटबुक में लिखिए। ठीक है, तो अपना पाठ यहाँ हंसना मना है पाठ पूर्ण हो गया विद्यार्थी मित्रों। अब जब हम नेक्स्ट बार मिलेंगे तब मैं पाठ जो अपना नौवां पाठ है, क्या है, पहेलियाँ है। नौवीं जो है वो पहेलियाँ है, जैसे उलझन और सुलझन। जो नौवां है वो पहेलियाँ है, उलझन और सुलझन। वो मैं नेक्स्ट जब अपना पीरियड आएगा तब मैं आपको सिखाऊंगी। आज यहाँ पे अपना लेक्चर पूर्ण करती हूँ। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। अपने तुम्हारे एग्ज़ाम कंपलसरी सबके लेने वाली है, इसलिए आप सब लोग वीडियो देखकर अच्छे से तैयारी